बस हम करेंगे ये कि Parsa will join in 1 minute. Just an update. Okay, perfect. I guess 3. So it's 3. It's 3 o'clock. So best of luck, everyone. Do good. Thank you. Yeah. Thank you. Can we just pause here for a while, because on my side it is saying that live video is going to start in a few minutes. So I'm just stopping my video and muting myself. So just wait for my text in the chat window. Assalamualaikum. Hello everyone. मैं पाकिस्तान अलुमनाई नेटवर्क की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ. Welcome everybody on board today. Our topic of discussion is impact of COVID on creative arts and crafts in Pakistan. Well, audience, you know that art and craft has its own value in any kind of society. Because art is actually your recognition. It tells the lifestyle of any society. Art से हमारी पहचान है और हमारा कल्चर जो है हमारी कदरों को बयान करता है. आज हमने मेहमानों को दावत दी है. 3 हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा आर्ट्स के से है. इसमें जो है फनून लतीफ़ा के 3 शोबे हैं. मेरे पहले गेस्ट है सफ़ीर साहब. सफ़ीर साहब का ताल्लुक थिएटर से है. शाइस्ता है हमारे साथ जो कि अपना आर्ट प्लेटफॉर्म रन करती है. और हमारे तीसरे गेस्ट हैं आज के गफार साहब जो कि आर्ट की तालीम से वाबस्ता है. So we'll start with Mr. Safir. Mr. Safir, as you know, this pandemic has really affected all field of life, everyone. It choked us, and it actually affected all the professions. But I want to know how it affected arts in Pakistan, particularly in your field. So tell us about your field a bit. You introduce yourself. I know you are from the theater background. So I would like to know how this particular art form in which you've been working for years got affected suddenly through with COVID. Thank you very much, Alina, for providing me an opportunity to talk to so many people, honorable members of Puan. My name is Safir, and I run a theater group with my friends, and this group is called Theater Wale, so the people who do theater. I am involved with theater since year 2000, so it's about 21 years now. I have done a lot of street theater, raising awareness on various issues, domestic violence, girls' education, that kind of stuff. And lately, I started doing other kind of theater. I mean, we would pick plays from world literature, from Urdu literature, and we would perform them in Islamabad and Karachi, Lahore, and even sometimes twice we went to USA as well. What do you think? Should we do a round of introductions first? Other participants are also introduced, and then we start talking about the issue, or do you want me to continue? Can you hear me, Alina? I think you should continue. Okay. Meanwhile, she comes back. Yeah, either she would come back or Shanila would take up. Anyhow, so theater is a very specific kind of art, and what is very important about theater, or if you ask me, the key feature of theater is its liveliness. It should be live.
it's not recorded. When it's recorded, it becomes a movie. So theater was particularly hit really hard by COVID pandemic, because people could not gather, and we could not perform before live audience. And that's very, very important for us to have live audience. So we were, I think, the first hit people by the COVID pandemic. And if we, I mean, I talk about other artists or other performing arts, because people could not get together, so all these art forms were affected. I was doing theater for 20 years and I never got into video making, but that was the first time in 2020. In March 2020, I was actually, let me tell you that I was actually working on a play. Alina, I can't hear you, by the way. I think you are saying something. So sorry. So basically, this particular art, you told us that because audience, theater wants audience. Because इसकी फील ही तब आती है जब ऑडियंस सामने बैठी हो. तो आपको नहीं लगता वाइस वर्सा ऑडियंस भी थिएटर्स मिस कर रहे हैं? और इस सारे सिलसिले में आप बता रहे हैं कि आप डिजिटलाइजेशन की तरफ चले, तो डिजिटलाइजेशन क्या इंसाफ कर पाती है इस फॉर्म ऑफ आर्ट से? इसके बारे में कुछ बताइए. मैं इसी तरफ जा रहा था कि बेसिकली डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना जो है वो एक मजबूरी थी कि ऑडियंस नहीं आ सकते थे, और जाहिर है कि हमारे बहुत कुछ लॉयल ऑडियंस हैं जो हमारे प्लेस देखने के लिए बहुत रेगुलरली आते हैं. तो हमारे लिए और उनकी तरफ से जाहिर है कि हमें मैसेजेस आते थे कि यार कब कुछ कर रहे हो. और फिर चूंकि ये बार बार वेव्स आती थी तो हम कोई प्लान करते थे. हमने बाज़ दफ़ा कोई प्ले या कोई परफॉर्मेंस अनाउंस कर दी, और उस दौरान फिर कोविड की जो वेव है वो फिर नंबर्स बहुत हाई चले गए, तो हमें फिर कैंसिल करनी पड़ गई, या लिमिटेड, या वो जो आपको डिस्टेंस रख के, तो अगर आपके पास वहाँ पे 120 की सीटिंग कैपेसिटी है तो आप मुश्किल से उसमें 40 लोगों को बिठा सकते हैं. तो इस तरह के जो इश्यूज थे उन्होंने हमें अफेक्ट किया. और दूसरे जो हमारे साथ म्यूजिशियंस हैं या और लोग हैं, बहुत से लोगों का ये बिल्कुल, क्योंकि एक जब भी कोई बीमारी है, जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस आता है, तो उसमें लोग इसेंशियल्स की तरफ वापस चले जाते हैं. और आर्ट जनरली भी नॉट कंसिडर्ड एन एसेंशियल आइटम हमारी जिंदगी का. और पाकिस्तान की जो पर्टिकुलर हमारी अपनी सोसाइटी है जिसमें आर्ट को वैसे भी कोई बहुत लिफ्ट नहीं कराई जाती है, तो उसमें तो आर्ट बिल्कुल भी इस तरह की सूरत हाल में किसी का कोई ध्यान नहीं था कि आर्टिस्ट भी कहीं हैं, क्योंकि लोगों की बहुत इसेंशियल चीज़ें जो हैं, आप ज़ाहिर आपने पहले ही फोकस अपना हॉस्पिटल्स पे रखना है, आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनको ठीक करना है. और अगर कहीं खुलना शुरू होती हैं चीज़ें और सूरत हाल बेहतर होती है, तो उस सूरत में आप पहले स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे, इंडस्ट्री चलाएंगे ताकि ज़िंदगी का पहिया चले. उसके बाद आप कहीं सोचेंगे कि हाँ कहीं कोई ड्रामा, कोई म्यूजिक, ये चीज़ें भी होनी चाहिए. तो इस वजह से हम लोग आर्टिस्ट लोग जो हैं, वी आर ऑलवेज ऑन द लास्ट बॉटम जो होता है ना प्रायोरिटी लिस्ट का, उस पे कहीं पड़े हुए होते हैं. और जब सब होश आ जाता है हर तरफ से, तो फिर लोगों को ख्याल आता है कि हाँ यार कोई आर्टिस्ट भी होते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना चाहिए, कोई आर्ट देखना चाहिए, कोई प्ले देखना चाहिए, कोई परफॉर्मेंस देखनी चाहिए. तो उस तरफ बहुत बाद में जाते हैं. सो ये 1-1.5 साल का अरसा जो है बहुत एक टफ टाइम था. हमें एज थिएटर वाले हमने एक अपनी स्पेस ले रखी थी, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ थिएटर करते हैं जो कि यूजुअली जो पावरफुल लॉबीज हैं उनको पसंद नहीं आता है. और बहुत हम क्या कहना चाहिए कि हट के और डिफरेंट सी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो जनरली सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होती हैं, इतनी ओपन बात करना इश्यूज पे हो. तो हमारी बहुत एक लिमिटेड सी ऑडियंस है, और हमें जो परफॉर्मेंस के लिए स्पेसेस मिलती नहीं है. हमें PNCA ने हमारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस से 2 दिन पहले मना कर दिया कि आप नहीं करेंगे. इस तरह की सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ी. हम लोग फिर समय नहीं परफॉर्म कर सकते थे. हम और ऐसे सरकारी जो भी गवर्नमेंट के ऑडिटोरियम्स हैं उनमें नहीं परफॉर्म कर सकते थे. तो हमने फाइनली फिर एक अपनी स्पेस बना ली थी बनीगाला में. हम वहीं पे रिहर्सल्स करते थे, वहीं पे हम परफॉर्म करते थे. एक लिमिटेड से हमारे जो एक लॉयल ऑडियंस थी वो वहाँ आ जाते थे. तो उस स्पेस को सस्टेन करना, क्योंकि वो रेंटेड थी, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया था. हमने कोई साल 15 months इस तरह से उसको
रन करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वी गेव अप। तो हमने वो स्पेस जो है वो छोड़ दी। और उसमें जाहिर है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लाइट्स थी, जितनी थिएटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारा कुछ हमने वहाँ पे इकट्ठा कर रखा था। तो हमारे पास उसके बाद ये स्पेस भी नहीं थी कि अब इस सारे को हम स्टोर कहाँ करें। हम वो लाइट्स फेंकना भी नहीं चाहते थे, बेचना भी नहीं चाहते थे। वो सारा जो हमारे एसेट्स थे उनको संभालना, उनकी टेक केयर करना, उनको कहीं स्टोर करना, कहीं सेव, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था। तो अब भी कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। तो लास्ट वीक मेरी टीम ने जो है वो इंग्लिश के 2-3 छोटे छोटे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म किए हैं लिमिटेड ऑडियंस के लिए, बट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन। अलीना, आपका माइक। जी, अब हमारे ऑडियंस का थोड़ा सा टेस्ट काइंड ऑफ डेवलप हुआ है। दे स्विच टू द स्क्रीन थिएटर में। आप इसको एज रिवाइवल कैसे देखते हैं? बिकॉज वी नाउ गोइंग टू रिकॉर्डेड थिएटर, और फ्यूचर में हम, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एज ऑडियंस और एज अ थिएटर परफॉर्मर फॉर दिस सडन हिट, जिसने हमें टफ, एक चैलेंज आया, चैलेंज ने ऑल्टरनेट तो दे दिया डिजिटल का, डिजिटल मीडिया का, मगर आपका रिवाइवल आप क्या समझते हैं फ्यूचर में क्या होगा, और क्या हम आइंदा तैयार हैं इस किस्म की कोई पेंडेमिक या चैलेंज, लॉकडाउन्स की सूरत में? जैसे मैंने पहली बात की थी कि थिएटर इन एसेंस एक लाइव परफॉर्मेंस होती है और लाइव ऑडियंस होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंस का पार्ट समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो डल से और लोग हैं जो उधर बैठे हैं उन्होंने कुछ नहीं करना, नहीं, दे आर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। और ऑडियंस के जो हमें रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनसे कोई क्लैप आता है, वहाँ से कोई भी उनकी कोई आवाज़ आती है, कोई रिएक्शन आता है, तो वो हमें हमारी एनर्जी को बूस्ट भी करता है और हमें हमारी एनर्जी को ख़राब भी कर सकता है। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा हो, हमें फीलिंग आ रही हो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है हमारी परफॉर्मेंस, तो ये इसेंशियली। और ये देख लें कि डिजिटल मीडिया मौजूद तो है, फिल्म जो है वो भी 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि बन रही हैं सिनेमाज में, और उसके बाद अब ये सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन थिएटर सर्वाइव कर रहा था और कर रहा है। उसकी वजह यही है कि फिल्म जितनी भी अच्छी बन जाए, वो बहरहाल आपको एक लाइव परफॉर्मेंस की जो फीलिंग है वो नहीं देती, वो एक्सपीरियंस नहीं देती है। ये मैं तो ये कहता हूँ कि म्यूजिक भी, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले हैं, तो लाइव थिएटर और लाइव म्यूजिक जो है वो एक लत है। अगर आपको लग गई है तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप यही ढूंढेंगे कि यार कहाँ हो रहा है और मैं जाके देखूं। तो वो आपको मूवी स्क्रीन पे ये चीजें देखना जो है वो, ये रिकॉर्डेड चीजें तो देखना, सब ये सब इसका आप रिवाइव नाउ। तो अब तो अगेन सभी सब आप, क्योंकि जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी सभी से मैं यही पूछना चाहती थी कि अब दोबारा से थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, और मैं ऑडियंस से भी कहूंगी कि ये टाइम है कि आप प्लीज अपने आर्टिस्ट को ओन करें, उन्हें सराहें। वो इतने अरसे बाद दोबारा थिएटर, सिनेमास ये खुल रहे हैं, तो प्लीज इस इतने अरसे से जो लोग तैयारियां कर रहे थे, प्लीज उनके आर्ट को सराहें, जाएं और टिकट खरीदें, अप्रिशिएट करें अपने आर्टिस्ट को, उन्हें सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से रिवाइवल जो है वो इसी तरह हो सकता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, इस वक्त तो यही हो सकता है कि लोग दोबारा वापस आए, और लोग वापस आ रहे हैं। हमारे पास रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है टीवी जो हमने परफॉर्मेंसेस की हैं। अदरवाइज ये कि अगर पेंडेमिक या इस तरह की सिचुएशंस फिर आती हैं, और अभी भी फिर एक वेव चल रही है, एक नया वेरिएंट आ गया है, वी डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट मंथ और 2 months, एवरीथिंग मे बी क्लोज्ड अगेन। तो उसमें ये है कि हमें फिर जाना पड़ रहा है। मैं इवन यानी ये टाइम है एक, वो मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास थिएटर का काम इतना ज़्यादा था कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं होती थी कि मैं वीडियो मेकिंग की तरफ सोचूं या उसका कोई एक्सपेरिमेंट करके देखूं या कुछ ऐसा। तो इसने मुझे बहुत सारा फ्री टाइम दिया, जिसमें हमने फिर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने 2-3 जो है तो शॉर्ट फिल्म्स कह लें या छोटे छोटे वीडियोस बनाए, एक्सपेरिमेंट किया, तो उस तरफ हमें जाना पड़ गया।
तो अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है तो फिर हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन आइडियली हम चाहेंगे, स्पेशली वी द थिएटर आर्टिस्ट, कि सिचुएशन बेहतर हो और हमारे पास लाइव ऑडियंस हो। हमें ये रिकॉर्डेड की अपनी सिग्निफिकेंस है, उससे इनकार नहीं है कि वो भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है। बिल्कुल, आई वुड से कि प्लीज ऑडियंस सपोर्ट द आर्टिस्ट जो थिएटर अब स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज जाएं, देखें, एसओपीज का ख्याल रखें और सफीर साहब थिएटर वालों को सपोर्ट करें। और इसके अलावा आपके जो भी शहर में और लोग इस तरह की जो है वो कार्निवल्स कर रहे हैं, फेस्टिवल्स कर रहे हैं, प्लीज उनको एंजॉय करें, सपोर्ट करें आर्टिस्ट को। मेरी एक मेहमान शाइस्ता है यहाँ पे मौजूद हमारे दरमियान। शाइस्ता भी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट आर्ट जो है वो कंडक्ट करती हैं। शाइस्ता का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अपना एक प्लेटफॉर्म भी चलाती हैं। तो मैं शाइस्ता से रिक्वेस्ट करूंगी, शाइस्ता पहले तो आप अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए जो बहुत अरसे से चला रही है और किस ऑडियंस के साथ आप काम करती हैं। थैंक यू अलीना, बहुत शुक्रिया। और मैं लिटिल हैंड्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, एक आर्ट प्रोजेक्ट है, वो 2016 में मैंने स्टार्ट किया। और मैंने इस पर्पस के साथ स्टार्ट किया कि आई विल एंगेज चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, प्रिविलेज्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो भी बच्चे हैं उनके साथ में काम करना शुरू करूंगी थ्रू आर्ट्स, और पॉजिटिव लर्निंग एक्टिविटीज उसके अंदर होंगी। दैट वाज माय आइडिया, क्योंकि हम सब जब जाते हैं कहीं भी बाजार में रुकते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, कार वॉशर्स, फूल बेचने वाले, गाड़ी साफ करने वाले, तो खाना खाने के लिए भी जाएं तो बच्चे आ जाते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। सो मेरा अपना भी शौक था बचपन से आर्ट्स की तरफ। सो आई फाउंड दिस मीडियम ऑफ आर्ट्स टू बी द बेस्ट व्हीकल ऑफ लर्निंग and experience about life, nature, this social and economic construct, और जो चीजें हम उनको स्कूलों में पढ़ाना सिखाना चाहते हैं। तो आई फाउंड दिस टू बी द बेस्ट थिंग कि जिसके जरिए उनको एंगेज किया जा सकता है। सो ये जब स्टार्ट हुआ तो slowly and gradually my focus shifted towards the children who work to earn or who are out of school गोइंग एज के हैं लेकिन स्कूल जा नहीं रहे। तो इन बच्चों के साथ ये शुरू हुआ। और फॉर्मेट ये था कि मैंने इनके डिफरेंट चैप्टर्स बनाए, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और KPK पेशावर में, चूंकि जाना मेरा काम के हवाले से होता था। तो जहाँ जहाँ ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी जाने की, वहाँ वहाँ हमने 20-25 बच्चों के ऐसे चैप्टर्स बना लिए। तो उनको जगह, हम ट्वाइस वीकली उनके साथ जगह प्रोवाइड करते थे। एंड आई यूज्ड टू कम अप विद डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ आर्ट, मिक्स मीडिया का, जिसमें हम रिसाइकल्ड मटेरियल भी ले आते थे, कलर्स भी ले आते थे, पेंसिल कलर्स भी ले आते थे, वाटर एंड ऑयल, जिस तरह के भी जो मटेरियल्स हैं वो ला के रख देते थे हम। और फिर द फॉर्मेट यूज्ड टू बी के आई वुड have a brainstorming session with all these children on different themes, और themes ग्लोबल थीम्स हैं लेकिन जिनको बहुत ही लोकली और उस अंदाज से उनके साथ डिस्कस करते थे, जैसे डिफरेंट बट ब्यूटीफुल एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। रंग के ऊपर जो एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चे के, व्हाट इज ब्यूटीफुल, उसके ऊपर बात करनी। फिर माय ड्रीम इन लाइफ, और पाकिस्तान इन माय आईज, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स जो कि उनकी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को और उनके अंदर वो सोशल वैल्यूज को अवेकन करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें हम आधा घंटा बैठ के बातचीत करते थे, और फिर बातचीत करने के बाद आई वुड लेट देम चूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड कम अप विद अ पीस ऑफ आर्ट दैट वुड रिफ्लेक्ट देयर थॉट ऑन द थीम जो हमने डिस्कस किया। सो ये उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बड़ी अच्छी ये लगती थी मुझे बात के सारे। जी श्योर, प्लीज पूछिए। ब्यूटीफुल। आई थिंक शाइस्ता, आर्ट की खूबी यही है कि आर्ट जो है वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी मजमून को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिस्कस भी कर लेती है और बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर देती है सोशल इश्यूज को इनडायरेक्टली, जिनको शायद हम वैसे फेस टू फेस डिस्कस करने से शायद कतराएं। आपका काम भी इसी तरह का है, वो थिएटर मीडियम में काम कर रहे हैं और इन्हीं हसास टॉपिक्स को लेकर बच्चों के साथ काम करती हैं। माशाल्लाह, इट्स वेरी हार्ड टास्क थिंग। और मैं आपसे ये सवाल करूंगी, जब लॉकडाउन आया
आप तो स्पेशल स्कूलों के बच्चे तो वैसे घर पे बैठ गए और उनकी क्लासेस भी डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गई और they were not allowed to go out to play. They had gardens in front of them, sport grounds, but they couldn't go. They were restricted to homes. और ये बच्चे जो sensitive हैं और they were not even going to school. उनकी limitations और बढ़ गई because they were dependent economically to go out or earn, और वो जब चीजें नहीं थी, रास्ते नहीं थे उनको कमाने के भी, तो वो फिर और रिस्ट्रिक्ट हो गए. तो ऐसी सूरत में आप व्हाट वाज योर चैलेंज और व्हाट यू वर एबल टू प्रोड्यूस, या आप कुछ क्या कर सकी, उस आपके काम पे कैसे असर किया कोविड ने? बिल्कुल, कोविड ने जाहिर है ग्लोबली हर काम को, जिस तरह सफीर साहब ने पहले फरमाया कि दुनिया भर में हर शोबे को अफेक्ट किया है, लेकिन अब आर्ट चूंकि खुद भी जिस तरह उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट चीज है, इसको लोग जरूरियात में नहीं समझते, तो उस वजह से उस पर पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी, और नेगेटिवली बिल्कुल उसने इफेक्ट किया, क्योंकि मोस्टली आई वाज वर्किंग विद द किड्स हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट और फोन्स, तो मैं तो उनके साथ काम इस तरीके से नहीं कर सकती थी, तो उनके साथ SOPs को फॉलो करते हुए जब कभी मौका मिला तो हमने एक्टिविटीज जारी रखी, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ रखी जानी चाहिए थी, या अदरवाइज इस क्राइसिस के पहले या बाद में हम रख पा रहे हैं. तो लेकिन फिर भी वी वर एबल टू होल्ड अ फ्यू वर्कशॉप्स, और मजे की बात उसमें ये हुई कि ये सारे बच्चे अब जिनका मैंने जिक्र किया है जो कि काम कर रहे हैं, वो उन फैमिली से और उस कम्युनिटी के हिस्से से आ रहे हैं जिनमें ये राय पाई जा रही थी कि कोविड कुछ भी नहीं है, ये ऐसी अफवाह फैली हुई है. सो यही बच्चे जो है वो आर्ट के थ्रू अवेयरनेस फैला रहे थे अबाउट कोविड. सो व्हेन वी गॉट टुगेदर और हमने कोविड पे और कोविड की एहतियातें क्या हैं और इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है और ये क्या है, उस पर जब उन्होंने आर्ट वर्क किया और वो घर लेके गए तो उन्होंने घरों में डिस्कस किया. सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि एक तो अवेयरनेस फैलाने का बहुत अच्छा मीडियम था कि यही बच्चे लेके जा रहे थे उस कम्युनिटी में यूजुअली ये चीजें, और फिर हम लोगों ने छोटी सी एक एग्जीबिशन भी की उनकी स्कूल के अंदर, जहां उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने परफॉर्म करके भी डेमोन्स्ट्रेट किया. सो कुछ और वर्कशॉप्स जो स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप्स हमने की, चाइल्ड अब्यूज के अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में वाकयात सामने आए पाकिस्तान में, तो चाइल्ड अब्यूज के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से स्टोरी टेलिंग. और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हुआ कि अर्लियर आई वाज क्लोजली वर्किंग विद दीज चिल्ड्रन, बट व्हेन दिस पेंडेमिक अकर्ड, तो उसने एक ये अपॉर्चुनिटी भी दी कि इंटरनेशनली जो हमारे कुछ आर्टिस्ट थे उनके साथ कोलैबोरेशन का मौका मिला. सो इन एवरी, एज वी से, इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज opportunity. So we got on board various artists from Australia and India and New Zealand as well. तो उन्होंने वायर आर्ट सिखाई बच्चों को, स्कल्पचर्स बनाना, और इंडिया से कुछ आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो है बच्चों के साथ कुछ वर्कशॉप्स की. तो दे वर ओपन अप और टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और एक्सपोजर जो है वो उनका मिलना शुरू हो गया. तो ये एक पॉजिटिव चीज थी. और नेगेटिवली बिल्कुल ये सही बात है कि उनको इकट्ठा करना, और वी कैन शेयर सम एक्सपीरियंस थ्रू डिजिटल सेशंस एंड वर्कशॉप्स, पर वो जो एक जगह पर होना और टुगेदरनेस और शेयर करना एक स्पेस को, टाइम को वाला जो चीज है वो नहीं हो पा रही थी. तो उस तरह से तो जरूर अफेक्ट हुआ. ब्यूटीफुल. तो मेरा आप दोनों से लेट्स इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और जनरली हम आर्ट के बारे में बात करेंगे कि आर्ट जो है वो एक्सक्लूजन और आइसोलेशन को कम करती है. कोविड में हम सब आइसोलेशन में थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को एंगेज होते देखा. कोई कुकिंग करे, बिकॉज कुकिंग इज एन आर्ट ऑल्सो, कुछ पेंटिंग पे चले गए. तो एक आपको क्या लगता है कि एक सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ डिगिंग आउट योर ओन सेल्फ, योर ओन टैलेंट्स, या आपने अपने इर्द गिर्द देखा, आपको कैसा लगा, और उसमें शायद आप लोगों के काम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाकी लोगों को भी ज्यादा, क्योंकि म्यूजिक की और आर्ट की तो कोई जुबान नहीं होती, इट कनेक्ट्स अस, although we were all isolated but somehow connected. So that somehow connected वाला जो है ना point, so मैं सफीर साहब से पहले डिस्कस करूंगी, फिर I'll get back to शाइस्ता. How you look at, how was your experience generally अपने काम के अलावा overall इसको देख जी. जनरली मैंने ये देखा कि
ये एक ऐसा वक्त था जब लोगों के पास काम इतना नहीं था, ऑफिसेज बंद थे, वर्क फ्रॉम होम था, बहुत से लोगों के पास जॉब्स भी नहीं रही, इस तरह की चीजें हुई। तो उसके नतीजे में लोगों के पास फ्री टाइम बहुत था। स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नहीं जा रहे थे, तो फ्री टाइम था। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको भी शायद ये बातें याद आएं कि बहुत लाइव सेशंस बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए थे। लोग यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, लोग फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज। मुझे खुद यानी कई लोगों ने राब्ता किया कि जी हम ऑनलाइन इंटरव्यूज करते हैं और आप फलां डेट को हम आपसे बात करेंगे थिएटर के बारे में। तो उन 6-8 महीनों में को 8-10 इंटरव्यूज तो मैंने भी दिए। तो इस तरह से लोगों ने उसका अल्टरनेटिव ये निकाल लिया कि सोशल मीडिया पे आप अपने अपने घर बैठे हैं। जूम उससे पहले भी मौजूद था, लेकिन जूम को बहुत कम लोग यूज कर रहे थे। सडनली इट बिकेम सो रेलेवेंट एंड सो यूजफुल अ प्लेटफॉर्म। और फिर इसको देखा तो लोगों ने, दूसरी जो कंपनियां थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मीटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया, और इस तरह की चीजें आ गई। तो हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज होती हैं और लोग फिर अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढते हैं, रास्ते निकालते हैं। तो वो होता उस वक्त है जब पहले कोई बंदिश लगती है, कोई रुकावट आती है। तो जब हमारे पास एक फेस टू फेस मिलने का रास्ते बंद हो गए, हमारे पास इन पर्सन जो है लोगों के साथ बात करने के रास्ते बंद हुए, तो ये सारी चीजें, डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद थी लेकिन उसको हम उस तरह से यूज नहीं कर रहे थे। हमने सडनली उसको यूज करना शुरू कर दिया। हमारे साथ गफार साहब आ गए हैं। Before I ask, ये discussion शाइस्ता पे लेके जाओ, I would like to invite गफार साहब formally in this session. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. I'm sorry for quite late, just due to technical reasons. और कैसे हैं आप लोग सर? It's okay. Welcome. We are fine, and it's good to have you on the session. Audience, जैसे मैंने जिक्र किया गफार साहब का, he is an educationist, an art educationist. He's a sculptor. He's associated with the communication and digital arts also. So पहले तो सर अपना इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा हमें करा दें, आप किस इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, कितने सालों से हैं, और from where you are coming from. Okay. Thank you so much. My name is Ghaffar Muhayyiddin और मेरा बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इस तरह से कि मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन की हुई है 2004 इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन। और उसके बाद सिंस 2007 I've been involved or been a part of faculty in University of Gujarat. मैंने 2007 में एज ए लेक्चरर के तौर पे ज्वाइन किया था। देन इन 2011 आई प्रमोटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अप टिल नाउ मैं जो है वो डिज़ाइन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे लीड कर चुका हूँ। और अब पूरा जो हमारा एक डिज़ाइन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें 5 बेसिकली लीडिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, मल्टीमीडिया, प्रोडक्ट एंड सिरामिक्स, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ मेरे स्पेशलाइजेशंस हैं एजुकेशन में, आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेशन में, जिसमें मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी सिरामिक्स की जो मेरी मदर फील्ड है उसमें कुछ स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं। फिर मीडिया स्टडी में मेरा एमफिल है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी यूएसए से मेरा मीडिया एंड जर्नलिज्म में इसी तरह से कुछ अपेरेंटशिप्स हैं। और जैसे मैंने बताया सिंस 2007 आई बीन इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली द यूनिवर्सिटी सेक्टर, और तकरीबन 14 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यूनिवर्सिटी में सर्व करते हुए। सो दिस इज इट। थैंक यू सर। अच्छा, हम बात करते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो कोविड का इम्पैक्ट है आर्ट्स के ऊपर ओवरऑल पाकिस्तान में। सर आप एजुकेशन शोबे से वाबस्ता है, एंड यू नो आर्ट इज क्वाइट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू टीच, टू लर्न। अब उसमें उसको सीखने के लिए आप यू हैव टू गो टू योर, कहते हैं ना, उस्तादों के पास बैठना पड़ता है और उनसे उनकी सोहबत करना पड़ता है। आपको प्रैक्टिकली चीजें जो हैं वो सीखनी होती हैं। आपको एक कल्चर में रहना पड़ता है, एक सराउंडिंग में रहना पड़ता है, जो कि आर्ट्स कॉलेज या आर्ट्स इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं। तो दिस चैलेंज ऑफ टीचिंग आर्ट रिमोटली, how it affected both students and the faculty?
but how you cope up with this challenge? Because because आप तो यूनिवर्सिटी में टीच करते हैं जहाँ पे तो डिफाइनिंग मोमेंट है between the career, practical life and education. तो यहाँ से तो लोगों ने ग्रेजुएट होकर अपने करियर संभालने. So how you coped up with this and how was the experience? एक्चुअली कोविड जब आया है तो किसी को भी, और इवन सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, नो वन इन द इंटायर वर्ल्ड कोई भी तैयार नहीं था मेंटली फिजिकली इसको फेस करने के लिए. जैसे आपने पहले मेरे इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि आई बिलोंग्स टू अ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फील्ड. आर्ट एंड डिज़ाइन, जो भी आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड है, वो वट एवर जो भी है, वो एक प्रोफेशनल फील्ड है और एक प्रैक्टिकल फील्ड है. और इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर का और अपने स्टूडेंट के साथ एक कनेक्टिविटी, क्योंकि आपने एक स्टूडेंट को अपने साथ लेके चलना होता है थ्रू एक्सरसाइजेस, डिफरेंट एक्सरसाइजेस और डिफरेंट असाइनमेंट्स के थ्रू और डिफरेंट डिस्कशंस के थ्रू. आपको इन्वायरमेंट जो है आर्ट, स्पेशली आर्ट की फील्ड में आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है. आपकी टीचर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, असाइनमेंट से आप बहुत कुछ सीखते हैं. और इन सारी चीज़ों के लिए आपकी एक फिजिकल क्लासरूम का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है एक आर्ट एजुकेशन के लिए. फेस टू फेस लर्निंग जिसको कहते हैं, फिजिकल क्लास का स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हमारी सारी टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ, टूल्स के साथ हम लोग काम करते हैं. बीइंग अ प्रोफेशनल्स और बीइंग अ टीचिंग एंड एजुकेशन और स्टूडेंट जो हमारी एक्टिविटीज होती है. इस सारी सिचुएशन में कोविड की जो सिचुएशन थी उसने सबसे पहले जो जैसे कहते हैं धचका दिया, वो आर्ट एजुकेशन को धचका दिया कि हम अब फेस टू फेस और फिजिकली अपने स्टूडेंट को उस तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से. और उसमें क्या था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि हमारी अपनी जो फील्ड है ये सारी प्रोफेशनल फील्ड है और प्रैक्टिकल फील्ड है, जब तक आप उसको फेस टू फेस उसको टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्किंग नहीं करवाएंगे, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा एक प्रोफेशनल फील्ड के साथ, वो उस वक्त तक कभी भी उसकी लर्निंग का जो फेज है उसमें एक मेजर पार्ट जो है प्रैक्टिकल का वो मिसिंग रहेगा. ऑल्दो हमने इस कोविड की सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा भी. हमारा बहुत सा एजुकेशन सिस्टम जो था वो डिजिटलाइज हो गया. हम लोग थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके लिए ऑब्वियसली ना हम मेंटली प्रिपेयर थे ना फिजिकली प्रिपेयर थे. उसके लिए व्हाट्सोएवर वी टुक स्टेप्स, वो इनिशिएटिव्स लिए और समहाउ किसी हद तक उसमें कामयाब भी हुए. लेकिन जो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है उसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बड़ी शिद्दत के साथ मैंने फील किया है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो प्रैक्टिकल का चंक था वो मिसिंग रहा थ्रू आउट द कोविड पीरियड, जो हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकते थे और जो देते थे पहले प्रीवियसली. और अब हमारा जो ये पिछले 2 बैच गुजरे हैं स्पेशली, वो उन्होंने बहुत बड़ा एक हमारा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस जो थे वो मिस किए. So, you are also, working in Gujarat, an industrial hub. तो आर्ट इंडस्ट्री, आर्ट सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ कनेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप ये जो हमारे आर्टिसंस, हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, जैसे शाइस्ता ने बताया कि उन बच्चों के साथ चैलेंज था काम करना इनको इकोनॉमिकली चैलेंजेस, पहले चैलेंजेस थे. सफीर साहब ने बताया कि वो थिएटर्स बंद हो गए, तो जाहिर है आर्टिस्ट को नुकसान होता है वो, बिकॉज उनकी तो ब्रेड एंड बटर वो है. तो आर्टिसंस जो हैं, जो आपके सिरामिक आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, इनको कोविड ने कैसे अफेक्ट किया, और क्या इसमें कभी कोई पॉजिटिव वेव भी आई, कुछ लर्निंग्स थी पाकिस्तान के हवाले से? जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर, जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिकली आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेशन जो थी वो अफेक्ट हुई ड्यू टू द कोविड सिचुएशन. उसमें जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारी आर्ट एंड डिज़ाइन के फील्ड में हुआ वो ये हुआ कि जो हमारे आर्टिसंस थे, स्पेशली जो क्राफ्टमैन थे,
जैसे कि टेक्सटाइल, अगर आप इंडस्ट्री देखें तो टेक्सटाइल में वीवर्स जो थे, और सिरामिक्स में देखें तो सिरामिक्स पोर्टर्स हो गए, आपके हार्डवेयर में देखें फर्नीचर इंडस्ट्री, जितनी भी मैं जो हम लोग चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है एक हब में, जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्रियल ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में हम लोग की यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, और इसकी सराउंडिंग में सारी मेजर इंडस्ट्री, जिसमें पॉटरी है, जिसमें फर्नीचर इंडस्ट्री है, फैन इंडस्ट्री है, सैनिटरी की इंडस्ट्री है, सिरामिक्स इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री हमारे सराउंडिंग में है। कोविड की वजह से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ वो हमारे एक तो आर्टिसंस को डायरेक्ट अफेक्ट हुआ। उसकी वजह ये हुई मार्केट्स बंद हुई, लोगों की परचेज पावर कम हुई। परचेज पावर कम होने की वजह से जो लोग एक्स्ट्रा परचेज किया करते थे, हर सीजनल परचेज, स्पेशली अगर मैं सिरामिक्स की सिर्फ बात करूं तो सिरामिक्स सीजनल परचेज बहुत ज़्यादा होती है। वो सीजनल परचेज क्या होती है कि जैसे गर्मियों का सीजन आता है तो लोग पॉटरी की तरफ जाते हैं, स्पेशली टेराकोटा के बर्तनों की तरफ जाते हैं ताकि ठंडी चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो जितने भी आर्टिसंस थे वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, डायरेक्ट अफेक्ट हुए, क्योंकि मार्केट्स बंद हुई, जॉब्स बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स में, वो इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में। आपको बताऊं, जैसे मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद हूँ, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो तो समहाउ किसी तरह से चलते रहे, उनकी पेज भी आती रही, वो जो उनको ड्यूटी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं किया इतना। लेकिन जो डेली वेजेस थी, स्पेशली जो लोअर तबका है हमारा, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज जिनको कहते हैं, उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या फिर वो हैं डेली वेजेस के हैं। अब वो, और आपको पता है कि जितना छोटा क्राफ्ट वर्क है, स्पेशली सिरामिक्स हो गया या ये कपड़ों की रंगाई हो गई या छोटे छोटे जो आर्ट वीविंग, ये टेक्सटाइल वीविंग का काम हो गया, चादरों का काम, गुजरात बाय द वे बहुत फेमस है ये जो गरम शॉल हैंडलूम्स, यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है, पूरा चेन है यहाँ पे, स्मॉल इंडस्ट्री जिसे कह सकते हैं आप। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में जिन लोगों को जिनकी एम्प्लॉयमेंट्स गई, जिनको पैसे नहीं मिले, काम के पैसे नहीं मिले, जिनको जॉब्स चली गई, काम बंद हो गए, अब उनकी परचेज पावर ओब्वियसली, वो अब सिर्फ 2 वक्त का खाना पूरा कर रहे थे, तो वो एक्स्ट्रा अपनी जो So how did they switch? तो आप इस पे ये फिर स्विच कैसे हुआ? सर हम मतलब अब आते हैं ना, बिकॉज कोविड से डिजिटलाइजेशन हो, तो आप मुझे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम एकदम से फिर काम मिला और वो अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली या जैसा अभी शायद से ने बताया क्रिएट हुई। सो वो क्या क्या हम ये कहें कि डिजिटल सेंस जो है या डिजिटल जो एजुकेशन है वो आर्टिसन लेवल के भी लोगों के लिए जरूरी हो गई है? और क्या ये जरूरी है ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूजिंग दीज गैजेट्स टू सेल योर आर्ट नाउ टू वर्क? ऑब्वियसली अब जैसे मैं बता रहा था ना, मैं इसी तरफ आ रहा था कि इन सारी चीज़ों को जब अफेक्ट किया ना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज था, 3 से 4 फेज आ चुके हैं कोविड के, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज था वो बहुत टेरिबली उनके लिए डिक्लाइन में गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने ये भी देखा कि दुनिया जो थी, अब चूंकि जैसे एजुकेशन की मैंने बात की कि हम लोग को चाहते ना चाहते हुए, हम मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर थे या नहीं थे, हमें अपने आप को डिजिटल फेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, हम ऑनलाइन की तरफ जाना शुरू हुए। आप अगर कोविड का थोड़ा सा लास्ट ईयर का सिर्फ कंपैरिजन करें, जो कि हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स की भी एजुकेशन का सिस्टम मौजूद है, मतलब हम लोग ई कॉमर्स भी अपनी यूनिवर्सिटी में बाकायदा कोर्सेज करवाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को में काम लेने के लिए और उसका काम करने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर पूरा शिफ्ट हो गया ऑनलाइन की तरफ, इस तरह से बहुत सी एग्जीबिशंस की अगर मैं बात करूं या इवेंट्स की बात करूं, बहुत से, जैसे शाइस्ता भी पीछे बात कर रही थी कि बहुत से इवेंट्स जो थे ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए, मतलब कि आप विजुअल जिसको कहते हैं ना कि वर्चुअल एक्टिविटीज की तरफ कन्वर्ट हो गए। हमारा पूरी ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो विजुअल एक्टिविटीज की तरफ और इवेंट्स की तरफ कन्वर्ट हो गया। उससे फायदा ये हुआ कि हमारे मुल्क में जो
जितना स्पेशली जो ई कॉमर्स की साइट पे लोग इन्वॉल्व थे और जो ऑलरेडी इससे पहले ही कोविड आने से पहले ई कॉमर्स में को समझते थे, पढ़ते थे और पढ़ चुके थे और उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस था, उन लोगों ने बेहद काम किया। और आप अगर पाकिस्तान की ई कॉमर्स का टारगेट सेट चेक करें ना, पिछले लास्ट ईयर का रिकॉर्ड बीट किया पाकिस्तान ने ऑफ मतलब के ऑफशोर जितनी भी कंपनीज हैं या ऑफशोर प्रोजेक्ट्स जितने आए हैं, और उसमें ज्यादातर आपको सबको पता है कि जब ऑनलाइन काम हम करते हैं या ऑनलाइन काम पाकिस्तान में या तो दुनिया में करवाया जाता है, उसमें ज्यादातर आर्ट एंड डिजाइन का होता है, जिस तरह कम्युनिकेशन डिजाइन का, मल्टीमीडिया का, वीडियो प्रोडक्शन का, एनिमेशन का। अच्छा, ना सिर्फ ये काम चला, उसके अलावा एक जो पॉजिटिव चेंज आया, क्योंकि ठीक है हर तरह का इवेंट जो होता है वो अपने साथ मतलब के अच्छे एलिमेंट्स भी लेके आता है, बुरे एलिमेंट्स भी लेके आता है। कोविड के साथ जो एक पॉजिटिव एक मेजर चेंज आया, वो जैसे मैंने बताया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई। उसकी वजह से जो आर्टिस्ट लोकल यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बैठे थे और जस्ट वेट करते थे कि यहाँ पे कोई लोकल शो होगा, कोई एग्जीबिशन होगी, हम उसमें अपना पेंटिंग का काम भेजेंगे, स्कल्पचर का काम, सिरामिक्स का या व्हाट्सएवर कोई भी करेंगे। इवन टेक्सटाइल का काम जो है वो अपना शो करना होता था, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर बहुत कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी जो कि लाइव या लाइव एग्जीबिशन होती थी कोविड से पहले। कोविड की वजह से फायदा ये हुआ कि जैसे पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई ऑनलाइन की तरफ, तो बहुत ज्यादा वर्चुअल इवेंट्स हैपनिंग होना शुरू हो गई, वर्चुअल एग्जीबिशंस हो रही हैं, वर्चुअल सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। उससे अपॉर्चुनिटी ये मिली आपको इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट हो गए, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। जो आज तक अगर मैं खुद अपनी बात करूं, हमारी बहुत से यहाँ पे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जिनको एक टाइम मिला, टाइम स्पेस मिली, उन्होंने अपना काम किया और बेशक वर्चुअल एग्जीबिशंस थी उनमें पार्टिसिपेट किया, और उनको काम अगर बिका, कुछ काम ऑब्वियसली ऑनलाइन बिका भी, लेकिन जो बिका और नहीं भी बिका तो आपकी कनेक्शन और कनेक्टिविटी जो है ना, लिंकेजेस बहुत डेवलप हुए इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। अब इस चीज में एक लास्ट चैलेंज आई वुड से कि आप लोकल जी सर जी प्लीज जी सर गो अहेड जी प्लीज आपका लास्ट पॉइंट। मैं ये कह रहा था, इसमें जो लास्ट पॉइंट था, इन सारी चीजों में जैसे कि आपने जैसे पहले एक बात भी की कि हमें बहुत से लोग इसका फायदा, इस सिचुएशन का फायदा, ऑनलाइन बिजनेस का फायदा, ई कॉमर्स का फायदा बहुत सारा उन लोगों ने कमाया जो कि ऑलरेडी इस ई कॉमर्स के बिजनेस में थे। लेकिन उनको देखा देखी, चूंकि सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही थी, हमारे बहुत से आर्टिस्ट जो थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और इंटरनेशनल वर्चुअल अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना शुरू की, डिग आउट की, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली। इसके साथ साथ एक जो चीज हमें करने की जरूरत है, जो आपने अभी एक पॉइंट रेज किया था और जो कुछ हो भी रहा है उन चीजों पे काम, जो हमारे स्पेशली आर्ट। बिल्कुल, मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि चैलेंज क्या है इकोनॉमिकली काम करने के लिए पाकिस्तान के आर्टिस्ट को इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ या अपना काम बेचने के लिए? चैलेंज क्या है ये इस पे बात करेंगे सर। इसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जी सर। अच्छा, इसमें ना कनेक्शन का मसला खत्म हो गया, क्योंकि आर्टिस्ट जो इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान में, वो उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, वर्चुअल एग्जीबिशंस की, वर्चुअल इवेंट्स की। बहुत से आर्टिस्ट ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं, उनके अपने प्रोफाइल्स डेवलप हो चुके हैं ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और बहुत से आर्टिस्ट अपना काम डिस्प्ले कर भी रहे हैं इस वक्त। अगर आप ऑनलाइन एग्जीबिशंस की बात करें तो किसी भी एग्जीबिशन में देखें तो पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट जो पहले अननोन थे, वो बहुत ही एग्जीबिशंस में आपको नजर आते हैं। अच्छा, अब कनेक्शन डेवलप हो चुका है। अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी ये है कि हमने अब जैसे बिजनेस करते हैं ना, आप ऑनलाइन आपका कोई काम सिलेक्ट हो गया या आपको कोई काम मिला है, या लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, फाइवर से आपको काम मिला है या किसी भी ऑफशोर इस तरह की कंपनी से काम मिलता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर कैसे होगा। हमें इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको सजेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें हेल्प आउट करे हमारे आर्टिस्ट की स्पेशली, और उन सब लोगों की जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के
बाहर का काम कर रहे हैं और जो है ना बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं, उनको मसला ये है कि थर्ड सोर्स पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। अगर यही पेपाल का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हो तो हम इसको इजीली यहाँ पे बैठ के हमारा जो बिजनेस इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रहा है वो दैट कुड बी कन्वर्ट इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज वेल। सो दिस इज माय Beautiful. सजेशन। Because definitely, because ऑडियंस हम लोग अपने व्यूअर्स को भी मैं ये कहूंगी कि आर्ट इज नॉट जस्ट डेकोरेशन, इट्स अ होल इंडस्ट्री। सो हमें सबसे पहले तो जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फर्दर फॉर्म ऑफ आर्ट में काम करते हैं, अपनी हमारी एसोसिएशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट वी कैन टॉक टू द गवर्नमेंट, वी कैन टॉक टू द अदर पिलर्स, मीडिया से और गवर्नमेंट से, और फिर वहां हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखें या क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसे रिकॉग्नाइज एज एन इंडस्ट्री करना है, इसको ऑन करना है, अपने कल्चर, अपने आर्ट फॉर्म्स को और अपने आर्टिस्ट को काम देना और सपोर्ट करना है। आई थिंक एज अ होल सोसाइटी हमारा ये चैलेंज है और यही हमारा रिवाइवल है कि हम यहाँ से सपोर्ट करना शुरू करें जहां जहां हम कर सकते हैं। इस में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इज ओपन. Let's see who is there for and who is bringing questions. Meanwhile हम डिस्कस कर रहे थे गफ्फार साहब के, जर्नली हमने ये देखा कोविड के दिनों में कि पीपल हु वर इवन नॉन आर्टिस्ट या वो इतने क्रिएटिव नहीं थे, दे गॉट टाइम, दे गॉट बैक टू देयर ओन सेल्फ, अपने साथ टाइम मिला और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टाइम मिला और उन्होंने अपने कुछ चीजें बनाई। आपको घर में कोई किचन में घुसा हुआ मिलता था, कोई बागवानी करते हुए मिलता था, कोई अपनी पेंटिंग करते हुए। तो शाइस्ता was sharing her experience. Then I'll get back to you unless we get some questions after that. Hope so. जी Sure, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सच है क्योंकि it happens when you deviate from routine, so you get to be creative to adapt to the new situations. तो ये क्राइसिस की सूरत में भी हुआ, लेकिन एकदम से एक नई सिचुएशन में सब लोगों ने अपने आप को पाया। तो उसमें बहुत सारे टाइम के पास, जैसे पहले हमारे पास बहुत वक्त हुआ करता था, बहुत तकरीबन 10-15 साल पहले, तो उस वक्त की एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे बल्कि वो एक कुछ जोक्स और मीम्स भी चलते हैं कि घर पे इंटरनेट नहीं था और मैं घर वालों के पास बैठा तो पता चला कि अच्छे लोग हैं वो भी। तो ये एक मीम थी इस लिहाज से। तो ये वाकई हुआ कि एकदम से ब्रेक मिला और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला कि अब हम इस वक्त के साथ क्या करें, और they got an opportunity to jump into the world of imagination and knowing themselves more and allowing themselves to be themselves. So ये एक बहुत मजे की बात थी उसमें, और एक नई सिचुएशन के अंदर लोगों ने वाकई बहुत एक्सपेरिमेंट किया, लिखा, लोगों ने पढ़ा, आपस में बातचीत बहुत की, घर वालों का कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो गया, और बहुत अरसे के बाद ये भी हुआ कि लोगों ने इकट्ठे घर में बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, या फिर जो बहुत क्लोज लोग थे और जो आपस में मिल सकते थे SOPs को फॉलो करते हुए, उनका आपस में मेल मिलाप ज्यादा हो गया। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने वाकई आर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड था कि 5 मिनट क्राफ्ट्स और इस तरह की चीजें देख देख के लोगों ने करना शुरू कर दी और आर्ट बनाना शुरू कर दिया। तो आई वुड से कि ये एक अच्छी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी रही है और बहुत साथ दिया है इस एक्टिविटी ने लोगों का, और अपने आप को एक्सप्लोर करने में, अपनी आर्टिस्टिक सेंस को एक्सप्लोर करने में, उसको सामने लाने में। तो दैट वाज गुड। लेकिन चैलेंजेस की जिस तरह बात हो रही थी, गफ्फार साहब ने भी कहा, उसमें मैं अगर अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जिस तरह के लोगों के साथ ज्यादातर मैं काम करती हूँ, उसमें चैलेंज यही आया कि वो जो पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के पास, जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी और एक्सेस नहीं था, और दे वर नॉट अवेयर ऑफ having how to have access to the channels जिसको वो एज एन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जो दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा था उसको नहीं पता था कि वो कैसे काम करे, या फिर जो ट्रक काट करने वाला बंदा था उसको काम नहीं मिल रहा, या फिर जो मेरे साथ काम करने वाले बच्चे थे उनके एग्जिबिशंस नहीं हो रहे थे, या वो फिर दूर बैठे हुए सीख नहीं पा रहे थे। तो अगेन सबसे ज्यादा हार्डली हिट तो वही लोग हुए हैं जो कि हर किसी भी तरह के क्राइसिस से हिट होते हैं। तो ये जब गफ्फार साहब बात कर रहे थे तो मैं ये पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि
हम इस क्राइसिस से समहाउ इमर्ज तो हो रहे हैं ग्रेजुअली, लेकिन इससे हमें लेसन्स भी लर्न करने की जरूरत है कि आप किसी भी क्राइसिस में जब जाएं तो नेक्स्ट टाइम यू आर बेटर प्रिपेयर्ड टू कोप विद द चैलेंजेस दैट यू फेस। वेल सेड शाइस्ता। मतलब आई वुड से कि हमारे पास शायद चीजें थी, मतलब यहाँ पर हमारे घर जो दूध दे के जाते हैं उनके पास भी 2 फोन है तो हमारे पास प्रोसेस भी थे, टेक्नोलॉजी भी थी, हाँ सब कुछ इस फोन से हो जाता है, मगर हमने अपना इकोनॉमिकल शिफ्ट जो है वो इस पे नहीं किया, यानी वी वर नॉट प्रिपेयर्ड हाउ टू यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल फील्ड्स, स्पेशली फॉर आर्ट्स। इसके साथ हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। हमें पहला क्वेश्चन Can I add one point as you were saying कि हमारे पास ये चीजें थी। अच्छा, ये बहुत मैंने क्योंकि इस क्लोजली कम्युनिटी के साथ काम किया, बहुत दफा मैंने लोगों को ये कहते सुना कि तुम्हारे पास ये है, ये क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे पास ये है, तुम ये क्यों नहीं कर लेते। अब इसके बीच में जो गैप आता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने सारी इस 10-12 साल के काम के दौरान, उसमें ये कि जो मैंने अभी बात की है कि पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी है और आप मौजूद भी हैं, आप ये कर भी सकते हैं, लेकिन आपके दरमियान में जो गैप है ना वो इतना बड़ा है कि आपको नहीं पता कि आप इन रिसोर्सेज को यूज करके कैसे आगे निकल सकते हैं। वो हम सब जिस तरह पहले जिस तरह पहले की वर्ल्ड में लिटरेसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट और फिर आप एजुकेशन की तरफ आते हैं, आई थिंक डिजिटल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी अहमियत का अंदाजा हमें इस क्राइसिस से हो गया है। डेफिनेटली। और वो जैसे हमने वकार साहब ने भी बात की कि अब एक आर्टिसन के लिए भी जरूरी है कि एक नो हाउ हो इस टेक्नोलॉजी की। सो विल मूव टू द क्वेश्चन। सफीर साहब, आपके लिए मुझे ये लग रहा है डायरेक्ट है ये क्वेश्चन, और I can later on ask to add others also in it. Question is, how can an illiterate local artisan performing in some far-flung area of Pakistan get benefited from technology? एक ऐसा आर्टिस्ट जो far-flung में परफॉर्मर है, वो उसे टेक्नोलॉजी से आई थिंक टेक्नोलॉजी ने स्पेशली जो इलिटरेट या कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको खास तौर पर बहुत हेल्प किया है। मैं इसकी एग्जांपल जो है वो व्हाट्सएप से दूंगा कि व्हाट्सएप में जो ये वॉइस नोट वाली एलिमेंट आ गया है, इसने बहुत आसान कर दिया एक अनपढ़ आदमी के लिए कि वो जो लिख नहीं सकता, जैसे रोमन उर्दू लिखना, या इवन अब उर्दू भी लिखी जा सकती है उर्दू फॉन्ट में भी, लेकिन स्टिल लिखना एक चैलेंज होता है उनके लिए। तो उनके पास एक बहुत आसान सा वो आ गया कि वो एक वॉइस नोट बनाते हैं और उसको भेज देते हैं। प्लस मोबाइल ने वीडियो बनाना बहुत आसान कर दिया है। सो बहुत फार फ्लंग एरियाज में, कोनों खुदरों में बैठे हुए जो शायर हैं, जो सिंगर हैं, वो अपनी छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करके वो व्हाट्सएप के थ्रू या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर करते हैं। और अब आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ दूर दराज इलाकों में लोग बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे शेर लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानियां कहते हैं। और यूट्यूब पे आपको इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती हैं। मसलन मैं उस दिन एक देख रहा था जो एक बहुत टिपिकल देहात का जो वाइज ओल्ड मैन होता है, उस तरह का एक करेक्टर है जिसको उसके पोते जो है उसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। वो अपनी कोई वाइज बातें कर रहा होता है कि ये फलां चीज का हमें ऐसे ख्याल रखना चाहिए, जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए। तो वो जो एक फोक विजडम है वो उन बाबा जी के पास है, और वो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं और वो उनका पोता वीडियो रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे लगा देता है। और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। आई वाज सरप्राइज्ड कि उनके एक वीडियो जो मेरे सामने आया उसकी 67,000 व्यूज हो चुके थे। तो ये इसने मेरा ख्याल है कि इलिटरेट और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये ज्यादा आसान कर दिया है दूसरे लोगों तक पहुंचना और दूर दराज इलाकों में दूर लोगों तक पहुंचना। आई थिंक आपने इसके साथ ही दूसरा सवाल हमारा है वो भी आंसर कर दिया था, क्योंकि किसी ने पूछा है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन द एरा ऑफ यूट्यूब। तो एक तो आपने फार फ्लंग वालों को कर दिया, और इससे में ऐड करते हैं कि फ्यूचर परफॉर्मिंग आर्ट का यूट्यूब पे डू यू सी, क्योंकि बिल्कुल मुझे तो है, क्योंकि लगते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की जाहिर है कि थिएटर के साथ एक प्रॉब्लम, यानी एक मैंने थिएटर के आपको पहले जो बातें की कि उसकी एक खास बात यह कि वो लाइव होता है, लेकिन दूसरा उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जब एक दफा परफॉर्म होता है तो वहीं खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ नहीं रहती। ठीक है, वो एक परफॉर्मेंस उस वक्त 50 लोगों ने, 150 लोगों ने, 500 लोगों ने
ज्यादा से ज्यादा कितने 800,000 देख लेंगे, एक हॉल इससे ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है। सो वहां देखा गया और उसके बाद वो खत्म हो गया। वीडियो की खास बात ये है फिल्म की या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जो कुछ भी है कि वो उनकी लाइफ बहुत है वो, और स्पेशली अगर वो यूट्यूब या इस तरह की किसी सोशल मीडिया पे चली गई है तो अब वो सेफ हो गई है। वो बहुत लोग उसको देख सकते हैं, आज भी देख रहे हैं उसको, 2 साल बाद भी देख रहे होंगे उसको, हो सकता है 5 साल बाद भी देख रहे हों, क्योंकि वो वहां पड़ी है। तो आई थिंक यूट्यूब ने परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को सपोर्ट किया है और उनके लिए आसान कर दिया है कि वो लोगों तक अपना आर्ट जो है पहुंचा सकें, जो पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि आपके पास चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स बहुत थोड़े थे। जैसे 2000 तक आपके पास सिर्फ पीटीवी था, अब वहाँ कोई आपका जानने वाला है, कोई आपको चांस देता है तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप लोगों के सामने, ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों के सामने अपना आर्ट जो है वो पेश कर सकें। तो फिर प्राइवेट चैनल्स आए तो थोड़ा आसान हो गया, खुल गया और ऑप्शंस निकले। लेकिन सोशल मीडिया ने ये आसान कर दिया है कि आप हर बंदे का अपना एक यूट्यूब चैनल है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका ही। मेरे ख्याल से ये बात करें तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के साथ साथ दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे गफ्फार साहब, हमें यूट्यूब पे एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन की भी वीडियोस मिलती हैं हमें, उसके ऊपर ये हाउ टू मेक सेरामिक या हाउ ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो गफ्फार साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन द यूज ऑफ यूट्यूब एंड टिकटॉक का भी किसी को क्वेश्चन आया कि जो लोग कंटेंट बनता है, लोकल कंटेंट है और इसको क्रिएटिवली इसको किस तरह यूज किया जा सकता है। सर आपका माइक जो है वो म्यूट पे। गफ्फार साहब, शाइस्ता, वुड यू लाइक टू ऐड इन इट? सॉरी, हाँ अभी आ रही है मेरी आवाज? अच्छा जी जी, आवाज आ रही है जी। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो बात आप कर रही थी ना, हमारा जो एक टेंजिबल आर्ट प्रोडक्ट्स बेस, जो क्राफ्टमैन्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सिरामिक्स हो गया, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हो गई, रली, चादर, ये वो, और उसके अलावा बाकी जितनी भी हमारी टेंजिबल आर्ट प्रोडक्ट्स हैं या क्राफ्ट्स हैं, उसमें जैसे आपने बात की कि यूट्यूब ने और डिजिटलाइजेशन ने बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें प्ले किया है। बहुत से ऐसे क्राफ्टमैन्स हैं या छोटे आर्टिस्ट हैं, या जो जैसे बात करते हैं कि दूर दराज के लोग जहाँ पे अभी इतनी एजुकेशन नहीं है, लिटरेट हैं, उन लोगों ने इस मीडियम को प्रॉपरली यूज करके, जिनको इस मीडियम का, स्पेशली डिजिटल मीडियम का प्रॉपर यूज आ गया, उन्होंने इसको बड़ा परफेक्टली कैश किया है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे, एक कुकिंग भी आर्ट है। अब एक आई थिंक कसूर का या फिर ये गुजरावाला का एक देहात का एक लड़का है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो कि वो खाने बनाने सिखाता है अपने स्पेसिफिकली वो गांव के ही कल्चर के मुताबिक, उसी तरह के टूल्स, उसी बर्तनों में, क्ले के बर्तनों में ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हुए, और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और उसकी हर वीडियोस जो है वो मिलियन ऑफ व्यूवर्स उसको देख चुके हैं। इसी तरह से बहुत से अगर आप देखें तो जैसे शाइस्ता ने भी बात की थी कि 5 मिनट क्राफ्ट्स के नाम से हमारे सोशल मीडिया पे बेशुमार इस तरह की चैनल्स चल रहे हैं, और प्लस सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी क्राफ्ट्स डेवलप किए हुए, जो कि 5 मिनट क्राफ्ट, वो खाली वो सिर्फ एक 5 मिनट क्राफ्ट्स नहीं, उसके अलावा पूरे चैनल्स बन चुके हुए हैं। मैं खुद एक पर्सनली इस्लामाबाद में एक ग्रुप को जानता हूँ जिनके बहुत से बिजनेस हैं, उसमें से वन ऑफ द बिजनेस ये है कि वो छोटे बच्चों को स्कूल, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए वो एक स्पेशल चैनल है जिसमें वो छोटे छोटे क्राफ्ट्स उनको करके सिखाते हैं। छोटे क्राफ्ट्स हो गए, पेपर क्राफ्ट्स हो गए, क्ले के साथ काम हो गया, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज वो थ्रू चैनल्स जो है वो अपना स्टूडेंट्स के लिए और प्लस ऑडियंस के लिए वो लॉन्च करते हैं, और बड़ा कामयाबी के साथ सक्सेसफुली चल रहा है। मेरा एक पॉइंट इसमें यह था, जो सबसे पहला क्वेश्चन रेज किया था यहाँ से शैनीला ने, कि जो स्मॉल आर्टिजन्स दूर दराज के इलाकों में, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं गुजरात के
ये सिटी गुजरात सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, लेकिन इसके जितने सराउंडिंग के गांव हैं, स्पेशली जहाँ पे हम लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी है, इसके सराउंडिंग में बेशुमार गांव है, क्राफ्टमैन बेशुमार यहाँ पे क्राफ्टमैन, लाला मुसाखारियाँ, आप जितना इसका सराउंडिंग का एरिया देखेंगे तो बहुत से सिरामिक्स और फर्नीचर और फैन लेबर जिसको आप कह सकते हैं या क्राफ्टमैन कह सकते हैं। मैं उसको क्राफ्टमैन कहता हूँ क्योंकि वो उनके हाथ में स्किल है, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए वो छोटा छोटा टेक्निकल काम कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इवन दो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और टेक्नोलॉजी हर डोर स्टेप पे, इवन हमारे रूरल एरियाज में भी टेक्नोलॉजी हर डोर स्टेप पे मौजूद है। उसके बावजूद उनको, जैसे शाइस्ता ने बात की या शाइस्ता ने बात की थी, शायद यहाँ पे की थी कि उनको इस ई लर्निंग की तरफ लेके कौन आएगा और उनकी ई लर्निंग की, इनकी टेक्नोलॉजी की लर्निंग कैसे होगी। जैसे आपने एक मतलब इलिटरेट को कुछ सिखाएंगे तो वो पढ़ना लिखना सीखेगा ना, लिखना सीखेगा फिर पढ़ना सीखेगा। अब उसको ई कॉमर्स की लिखना पढ़ना जो है वो कौन लोग सिखाएंगे। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ महदूद है अभी तक ग्रेजुएट्स के लिए। मेरी कोशिश ये है कि अब वो किसी तरह से ओपन स्किल्ड पर्सन तक भी, जो लिटरेट पर्सन नहीं है, इवन मैट्रिक नहीं है, उन लोगों के लिए भी वो लॉन्च किया जाए। वो प्रोजेक्ट जो है वो टोटली ई कॉमर्स का 4 माह का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है ग्रेजुएट्स के लिए, और उसमें उनको सिखाया जाता है, टूल सिखाए जाते हैं, डिज़ाइन के टूल सिखाए जाते हैं, डिजिटल टूल सिखाए जाते हैं, और किस तरीके से अपना आपने अकाउंट बनाना है इस तरह की कंपनीज पे, फाइवर पे और फ्रीलांसिंग पे, और वहाँ से किस तरह से बिजनेस करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम अपने इलिटरेट और प्लस उन लोगों तक भी पहुँचाएं ये एजुकेशन, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक या यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तक। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ भी काम करना चाहिए, जितना मौका मिल सके उन इलिटरेट क्राफ्ट्समैन की लर्निंग ई कॉमर्स वाली साइड पे करवाई जाए। तो फिर आप देखेंगे किस तरह से बूम आएगा मार्केट में, टेक्नोलॉजी का भी और ये क्राफ्ट का भी। बिल्कुल, आपने ब्यूटीफुल, यू एक्चुअली डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ हमारे आर्ट्स ऑन डिजिटल फॉर्म। थैंक यू। इसमें इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ एक क्वेश्चन भी आया है और आई थिंक आप यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट समहाउ। द क्वेश्चन इज कि आप फ्यूचर में देखते कैसे हैं इसको, कि क्या ये खदशा है कि अब कोविड जब नॉर्मलाइज हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है, तो ऑनलाइन की बाइंग एंड सेलिंग की तो एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश हो गई, लोग हमें आदत भी होगी, और अब क्या चीजें वापस जाएंगी या आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? तो चीजें वापस नहीं जाएंगी। किसी ने क्वेश्चन, मैं इसका टोटली अभी अगला जो फ्यूचर देख रहा हूँ ना, मैं भी बहुत से लोग में से बात निकले, चीजें वापस नहीं जाएंगी। हम लोगों ने कोविड के साथ सारी जिंदगी रहना है, और नोबडी नोज इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर और द इवन इन द मतलब कि लॉन्गर फ्यूचर आपके साथ इस तरह की कोविड जैसी कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो आप जो एक स्टेप ले चुके हैं, पूरी दुनिया स्टेप ले चुकी है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन बिजनेस का, अब मेरे ख्याल में कि इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसको आपको मजीद इससे आगे जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है वो 5G पे जा चुकी है ऑलरेडी, हम अभी तक 4G पे बैठे हैं और हम अभी सोच रहे हैं हमने 5G पे कैसे जाना है। हमें 5G के लिए प्लस मजीद अगली टेक्नोलॉजीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को भी और अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं, अपनी फैमिली में और प्लस अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं, स्पेशली अगर हम लोग आर्ट एंड डिजाइन से बिलोंग करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमारे सराउंडिंग में जितने हमारे रेलिवेंट क्राफ्टमैन्स हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ ट्रेन करें। मैंने एक छोटी सी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। पाकिस्तान में एक ऐसा क्राफ्टमैन है सिरामिक्स में स्पेशली, वो पूरे दुनिया में उसका क्राफ्ट वर्क मशहूर है कि वो एक पेपर थिन बाउल्स बनाता है, उसको कहते हैं कागजी प्याला। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा है जो आर्टिसन है जो वो कागजी प्याला बनाता है, और ही इज बेसिकली लिव्स इन गुजरात सिटी, और उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप है। मैं अगर आप किसी को इत्तेफाक हो किसी से पूछे, आप पहले तो आप सर्च करें ना कागजी प्याला, तो आपको वो कागजी प्याला मिलेगा, और वो एक ही बंदा पूरे पाकिस्तान में बनाता है, एंड हिज नेम इज आरिफ।
बाबा आरिफ, और उसकी छोटी सी एक वर्कशॉप है। आई वेंट टू हिज वर्कशॉप, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको एज ए अपना अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और अपने डिपार्टमेंट के लिए मैंने उनको हायर कर लिया, और फॉर्चुनेटली ही एग्रीड टू वर्क विद अस। अब वो हमारे पास आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अपना काम भी करते हैं और स्टूडेंट्स को अपनी वो टेक्निक भी सिखाते हैं। तो अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी हो सके आपके सराउंडिंग में कोई इस तरह के यूनिक क्राफ्टमैन, तो पाकिस्तान में बहुत से यूनिक सरामिक्स में, क्ले में, टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, अगर आप थोड़ी सी अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे क्राफ्टमैन नजर आएंगे जो यूनिक है। कोशिश करें कि उनको किसी तरह से अपनी उस गैदरिंग में अपने जिसे कहते हैं ना ऑन बोर्ड ले आए। बस आप जैसे उनको ऑन बोर्ड लेके आएंगे तो गवार साहब बेसिकली यू आर एक्चुअली एडवाइजिंग अस कि अपने इर्द गिर्द के लोग जो जिस भी आर्ट फॉर्म से हैं उन्हें एम्पावर करें। हाँ, उन्हें एम्पावर डिजिटल टेक्नोलॉजी में, चाहे वो शाइस्ता की तरह वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी जो इतने प्रिविलेज नहीं है, या जैसे सफीर साहब थिएटर में काम करते हैं, तो जैसे बाकी सारी चीजें ओपन हो गई हैं तो शायद थिएटर पूरा डिजिटलाइज ना हो, मगर हमारी बाकी तकरीबात भी नहीं रुकी, शादियों के फंक्शंस वैसे चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट थिएटर? शायद हम एसओपीस के साथ थोड़े करें मगर ये चीजें आबाद रहें और इन्हें इंडोर्स करते रहें, इन्हें मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। ये छोटा सा पीस है, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ, ये बेसिकली टी पोट है, टी कप है, ठीक है। टेराकोटा सिंपली विदाउट ग्लेज टी कप व्हिच ही मेड दैट क्राफ्टमैन द बाबा आरिफ हु इज फेमस फॉर मेकिंग द कागजी प्याला। अब ये इतना सा प्याला, और दिस इज आल्सो अ वेरी थिन पोट, ठीक है। और ये कितने का मार्केट में वो सेल आउट करते हैं मैं आपको बताऊं, जस्ट इन 6 रुपीज, जस्ट इन 6 रुपीज। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू, हम लोग अब उसको मैं किस तरह से चैनलाइज करना चाह रहा हूँ, उसको इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के तौर पे उनको ऑन बोर्ड किस तरह से किया, ऑन बोर्ड किस तरह से किया है। मैं उनका कप ये अब मार्केट कर रहा हूँ कि एज ए ये जो पोट है चाय का, ये आपका डिस्पोजेबल टी कप है। आप इसमें जस्ट वंस आप चाय पिए, 10 रुपए का पीस है। आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं, कोई भी आप डिस्पोजेबल कप लेते हैं जिसमें चाय आप पीते हैं, तो 10 रुपए से कम नहीं मिलता। ये आपको 10 रुपए में मिलेगा। आप इसमें चाय पियेंगे और देन थ्रो इट, ब्रेक इट, इसको तोड़ दें, जस्ट वंस आप इसको यूज करें और इसको खत्म कर दें। तो एक तो फायदा क्या होगा, फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑर्गेनिक मटेरियल है, आपको हाइजेनिक रहेगा, आप दोबारा यूज नहीं करेंगे इसको, कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। आपकी वो जो है ना वायरल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, वो आगे वायरल नहीं होंगी। और 10 रुपए का जो मार्केट में जो प्राइस, ऑलरेडी मार्केट में प्राइस है, बाबा जी ये 6 रुपए का बना रहे हैं, हम 10 रुपए का वो मार्केट में सेल आउट करेंगे। सो दिस इज द वे वी कैन इंट्रोड्यूस ओवर, और या फिर हम अपने जितने सराउंडिंग में कोई एक भी क्राफ्टमैन ऐसा पकड़ लें जिसको हम अपने साथ लिंक करके हम उसको भी रास्ता दिखाएं, तो पाथवे। मैंने अभी खुद पर्सनली उसको 1000 पीस का ऑर्डर दिया कि आई विल, मतलब कि मैं खुद उसको बेचूंगा या मैं खुद इसको मार्केट करूंगा। सो वो जो टोटल प्राइस इसके साथ हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। Let's conclude this talk. Thank you to all the, thanks to Pak Alumni Network for organizing this session. आप देखिए हमारी हम बातें हैं, हमारी इतना कुछ we want to contribute in this, और I would request इस तरह के टॉपिक्स जो है वो नए लोगों के साथ भी डिस्कस होने चाहिए, होते रहने चाहिए। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू माय ऑल गेस्ट, गफार साहब, शाइस्ता, सफीर साहब, फॉर बीइंग एक्टिव, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। और थैंक्स एवरीबॉडी। मैं यही कहूंगी कि जैसे कोविड ने इफेक्ट किया, आर्ट को भी इफेक्ट किया, एक सिचुएशन आ गई है, एक चैलेंज क्रिएट हो गया है और हम सब ट्रांसफॉर्म हुए हैं एक न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में, और इसमें हमने सबको साथ लेके चलना है।
इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश कि हमारा आर्ट एंड कल्चर सेक्टर जो है वो प्रोग्रेस करे और हम सब ने मिलकर इसके लिए काम करना है। थैंक यू। थैंक यू सो Thank you मच। very much. सही बात है, थैंक यू वेरी मच।